So hello everyone. We are going to discuss today's topic is definition. The function of language we have already did. We have previously discussed about that. We have five functions: informative, expressive, directive, ceremonial, and the performative. Now we are going to discuss about the types of definition, how many types of definitions are there, and how to work. So we have a session with you with these key terms, definer and yes, you can see the screen in front of you. This one is taken from the book The Copy, Irving Copy, Introduction to Logic, and our course content covering the types of definition. So, students, you have to be understand first before going toward to define anything. You have to be define the word definition. यानी डेफिनेशन की आज हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं. So definition क्या है? Basically, when we define anything, we refer to some symbols, some signs, and to some objects, and we put meaning into that. अगर हम कहें कि स्पोर्ट्स क्या होता है तो आप कहेंगे कि स्पोर्ट्स मीन्स मेनी गेम्स आर इन्वॉल्व or there is a win or lose. So you have to be described with some symbols, with some signs, with some objects. ठीक है, जैसे कि यहाँ बुक में एग्जाम्पल कोड हुआ है कि जब हम चेयर को एक्सप्लेन करेंगे तो चेयर को आपने एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि चेयर के लिए वी कैन सिट ऑन इट, वी कैन पेंट है, स्ट्रक्चर है, इसका खास एक आइडेंटिफिकेशन है. तो वन वर्ड डिफाइन द अनदर वर्ड, वी डिफाइन द वर्ड्स विद द रेफरेंस टू द अनदर वर्ड्स. तो डेफिनेशन के दो बड़े अहम कंपोनेंट्स हैं, पार्ट हैं. एक वो जिसको डिफाइन किया जा रहा है, एक वो जिससे डिफाइन किया जा रहा है. व्हाट डज इट मीन? अब एक वर्ड है द चेयर, हमने कहा ऑन विच वी कैन सिट, ऑन विच वी कैन सिट, ये भी वर्ड्स एंड सिंबल्स हैं. चेयर भी और एक सिंबल्स है. तो डिफाइनेंडम क्या है? ये ऐसी डेफिनेशन में वो वर्ड्स एंड सिंबल्स हैं जिसको डिफाइन किया जा रहा है. अगर मैं जैसे लेक्सिकल को वर्ड डिफाइन करूंगा, मैं प्रिसाइजिंग को डिफाइन करूंगा, या मैं सिलोजिस्टिक रीजन बोलता हूँ, तो ये मैं डिफाइंडम कहलाएगा ये, क्योंकि मैं आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस. अब डिफाइनम क्या है? ये वो सिंबल्स एंड ग्रुप्स हैं दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द मीनिंग. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डिफाइंडम हो गया. But when you explain that it involves analysis, evaluating, criticizing the argument, the sound argument and the unsound argument. तो ये कैसी बात हो गई? यानी आपने critical thinking is a definer and defining the word and the symbols are used for define that word. ठीक है. अब उसी के नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास 5 kinds of definitions नहीं है. We have to be click later on. The first one is stipulative, second one is lexical, the third one is precising, and fourth is theoretical, and the fifth and the final one is persuasive. Persuasive. So what does it mean, and how we can define it? We have to be taken one by one. First, stipulative definition. A stipulative definition, you can say that you introduce a new symbol, new symbols and new signs, which never be as before you hear that word. You will define in a new way. Mostly in the science subjects, many new symbols are introduced in many technical terms and are introduced to define anything, right? जैसे कि हॉकिंग रेडिएशन की बात करेंगे हम, तो वो हॉकिंग के नाम से आ गए. अब जैसे जीटा, अब जीटा स्पेकुलेटिव है. जीटा किसे कहते हैं? कि बिलियन ट्रिलियन यानी 10 to the power 21 है. इसका ना योटा, जो 10 to the power 24 हो यानी ट्रिलियन ट्रिलियन जो, तो उसको जो है वो योटा कहते हैं. जीटा हमने बताया कि बिलियन ट्रिलियन को कह रहे हैं. इसी तरीके से और अगर आप देखें जेप्टो, जेप्टो और फिर ये बिलियन ऑफ ट्रिलियन है.
लाइनोड, योक्टा, तो ये टर्मिनोलॉजी जो है वो हमने इसी तरीके से गूगल, a name suggested by the 9-year-old nephew of the mathematician, कि अगर 1 digit followed by the 100 zeros यानी 10 to the power 100, उसको गूगल कहते हैं। अब ये लफ्ज पहले नहीं था, अब ये जब डिफाइन किया गया, उसके साथ डिनोट किया गया, तो अब जब से इसको समझा हो जाना जाएगा तो उसको इसी वर्ड के साथ समझा जाएगा। ये स्टिपुलेटिव डेफिनेशन है। इस तरह से उन्होंने एक और एग्जाम्पल दी है कि एडवर्ड कैंसलर ने जब उसको रिप्रेजेंट किया लार्ज नंबर, द नेम ऑफ द नाउ फेमस इंटरनेट सर्च इंजन इज कॉल्ड गूगल। तो जो गूगल है बेसिकली गूगल जो था, जिसको 10 to the power 100, यानी इसकी इसकी एक जो जीरो थे, 1 digit फॉलो बाय द 100 जीरो, तो ये 100 जीरो का लगाना तो कितनी बड़ी फिगर बनेगी, तो उसको नाम देते हैं गूगल। तो उसी से फिर ड्राइव हो गया गूगल। आज गूगल एक एप्लीकेशन बना हुआ एक वर्ड है, और अक्सर हम कहते हैं कि तुम उसको गूगलाइज कर लो या तुम तो गूगल हो गए हो। तो व्हाट डज इट मीन? तो हम इस गूगल को हम इस सेंस में लेते हैं कि एक लार्ज डेटाबेस है जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसी तरह अगर हम देखते हैं साइकोलॉजी के अंदर हमने जी फैक्टर नाम रखते हैं। जी मीन्स यानी जर्नल, तो जर्नल फैक्टर्स थ्योरी को नाम दे दिया, तो जी फैक्टर दे दिया, तो ये एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया। इसी तरीके से ईक्यू इंटेलिजेंस के, तो इसी तरह जो क्वांटम फिजिक्स इंट्रोड्यूस हुई, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको क्वार्क कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और ये लफ्ज इंट्रोड्यूस की। इसी तरीके से फिलॉसफी में चार्ल्स सैंडर बियर्स ने लफ्ज प्रैग्मेटिज्म को यूज किया। प्रैग्मेटिज्म होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस, बेनिफिशियल, यूजफुलनेस के लिए। तो ये वर्ड जो है वो एक इजाद हो गया, डिफरेंट हो गया, डिस्क्राइब किया जाने लगा। इस तरह से स्पेकुलेटिव डेफिनेशन समझे एक तरह का प्रपोजल है, एक रिक्वेस्ट है, कुछ वर्ड्स की, कुछ सिंबल्स की, कुछ साइंस की, और फिर वो ही आगे जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। बहुत सिंपल था। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड, दैट इज लेक्सिकल definition. Lexical definition means what? You can say that where the defined is already there. जैसे कि हम स्पेकुलेटिव में वी हैव डिस्कवर्ड अ न्यू वर्ड टू डिफाइन दैट, बट यहाँ पे वो वर्ड पहले से मौजूद है। वी हैव टू सी विद एग्जांपल दैट द वर्ड बर्ड मीन्स वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स विद फीदर। अब ये एक वर्ड है, या बर्ड को अगर हम कहते हैं तो द वर्ड बर्ड मीन्स 2-footed मैमल। अब ये एक गलत है, मैमल तो हम कहेंगे ही उसको, ठीक है। क्या है वो वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट है। इसी तरीके से अगर हम लेक्सिकल डेफिनेशन में देखते हैं, और तो हम जो वर्ड यूज करते हैं तो वो हमारे पास पहले से मौजूद है। नंबर सिस्टम इन बेस 2, तो हम उसको क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर या डुडेनम, ठीक है। इसी तरीके से जो लेक्सिकल डेफिनेशन है उसमें प्रायर मीनिंग नहीं होते, यानी इस डेफिनेशन में भी ट्रू और फॉल्स, यानी पहले से हमारे पास स्टेटमेंट है, हम उसको देखते हैं कि वेदर दिस वर्ड इज करेक्ट और नॉट। जैसे अब यूनिकॉर्न है, तो यूनिकॉर्न का मतलब ये कि एक एनिमल है, एक हॉर्स है और उसके पास वन सिंगल हॉर्न है फोरहेड पे, तो ये डेफिनेशन जो है वो करेक्ट है। लेकिन अगर कोई कहे इसको किसी और वे में डिफाइन करे, डिनोट करे, तो बिकॉज देयर आर नो यूनिकॉर्न, तो अब आपको किस तरह से डिफाइन करें। तो लेक्सिकल डेफिनेशन का मतलब ये है कि मीनिंग द डिफाइन ऑलरेडी हैज a lexical definition can be true or false, जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह प्रिसाइजिंग डेफिनेशन की बात करते हैं, तो प्रिसाइज नाम से ही जाहिर है, यानी प्रिसाइज का मतलब क्या होगा, बहुत सारी जो एम्बिगिटी और वैगीनेस होगा उसको रिमूव करते हैं, कि इसका मतलब ये हरगिज नहीं है जो आप समझ रहे हो, इसको हम एलिमिनेट करके बात करें कि इंस्टेड ऑफ दिस। तो ये जो है हम जैसे हम कहें कि लिबरल
और फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों एक ही नहीं, लिबरल एक अलग है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अलग है। तो हम दोनों को डिफाइन करें, हम दोनों को हम कहें कि इलिटरेट और इग्नोरेंट दोनों एक ही हैं। इग्नोरेंट लिटरेट भी हो सकता है, इलिटरेट एक अलग टर्मिनोलॉजी। तो दो टर्मिनोलॉजी के डिफिनीशन को, वर्ड्स को डिस्टिंग्विश करते हैं कि क्या है और वो क्या नहीं है। तो a definition device to eliminate vagueness, जो भी डबल मीनिंग है, वेगनेस है, एम्बिग्यूटी है, उसको क्लियर किया जाता है और कॉन्सेप्ट को मोर जो है वो ब्रॉडन किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 हॉर्स पावर। अब हॉर्स पावर से मुराद क्या है? हॉर्स पावर 550 पाउंड होते हैं बाय 1 फुट इन 1 सेकेंड। अब 745.7 वॉट, तो ये रियल हॉर्स मास इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड टू अबाउट इक्वल टू 18,000 वॉट। अब ये 200 हॉर्स पावर, ये बेसिकली जो है ये हॉर्स पावर डिनोट कर रहा है किसको? उसकी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरीके से इसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लाइटर की बात कर रहे हैं, तो लाइटर जो है वो उसकी एक फ्रिक्वेंसी है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग एजेस ऑफ एंगल। सो प्रिसाइज डेफिनेशन के अंदर हम जो चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हम उसको मीटर में, लीटर में किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं, 10 मिलियन तो इसी तरीके से और हमारे पास जो प्रिसाइज डेफिनेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि लफ्ज़ को जो डिफाइन किया जाता है, तो जो डिफाइन डेफिनेशंस हैं वो क्लियर हो, उसके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिगिटी ना। थ्योरेटिकल डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ये साइंस और फिलॉसफी में मोस्ट कॉमनली यूज होती है कि जब चीज़ों को आप एलोबरेट करते हैं और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि लफ्ज़ बोले हम प्लानट, तो हमने प्लानट को एक्सप्लोर किया कि प्लैनेट का मतलब क्या है? सिंपल बॉडीज हैं कुछ ऑर्बिट में, और 9 प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम के अंदर, उनके ये नाम हैं। और प्लूटो है, वेनस है, सैटर्न है, और उनसे लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ये हम पूरा लफ्ज़, हम कहें लफ्ज़ गैलेक्सी, तो हम पूरी गैलेक्सी को समझाएं। जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा डार्क प्लैनेट, जो छोटे छोटे प्लैनेट हैं, प्लूटो हो गया, सीरीज एंड ईरीज, ये छोटी छोटी सी बॉडीज हैं, इसको हम प्लैनेट ही कहते हैं। छोटा सा एक डार्क प्लैनेट को कोना सा, जिसको उन्होंने नाम दिया तो प्लूटो, सीरियस एंड ईरीज। तो ये डिफाइन किया, ये थ्योरेटिकल है, यानी पहले थ्योरी अलग थी, अब थ्योरी अलग थी। पहले थ्योरी कहती थी कि देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, आप कहते हैं कि नहीं 9 नहीं 8 है, जो 9 था वो एक डार्क प्लैनेट, एक छोटा सा एक प्लैनेट है। इस तरह प्लैनेट क्या होता है हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा। एक सेलेस्टिकल बॉडी है विद इन द सोलर सिस्टम, के एक सोलर सिस्टम के अंदर सेलेस्टिकल बॉडी है और वो ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के गिर्द रोटेट कर रहा है, सफिशिएंट मास है उसका, ग्रेविटी है उसकी अपनी, और उसके बाद क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, उसके इर्द भी बहुत सारे अदर प्लैनेट्स हैं। तो ये सारे एक डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन में हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अब यहाँ लिखा है कि सुकरात ने जस्टिस की बात किस तरह से बताई, तो प्लेटो ने अपनी किताब पब्लिक में जस्टिस को डिफाइन किया कि जस्टिस क्या है। और इसी तरीके से कि वर्च्यू की बात हो रही है, नॉलेज क्या है, वर्च्यू एथिक्स, स्पाइनोजा ने अपनी बुक एथिक्स में बॉन्डेज फ्रीडम को बताया। तो ये जो यहाँ पे थियोरेटिकल डेफिनेशन है, वो आपको जो लफ्ज़ डेमोक्रेसी है, तो क्लियर बताएंगे कि डेमोक्रेसी की मीनिंग थियोरेटिकली क्या है, डिक्शनरी मीनिंग। अच्छा, पर्सुएसिव डेफिनेशन क्या होती है? पर्सुएसिव डेफिनेशन जो अक्सर पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट में इस्तेमाल होती है, जिसमें चीज़ों को अपने इमोशंस के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक तरफ लिबरल है और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट कंजर्वेटिव है, और अगर वो खुद कंजर्वेटिव माइंडसेट से है, तो वो कंजर्वेटिव की डेफिनेशन को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से बताएगा और लिबरल को एक नेगेटिव एलिमेंट के साथ। इसी तरीके से एक कैपिटलिस्ट और एक कम्युनिस्ट है, और अगर वो खुद कैपिटलिस्ट है तो वो कैपिटलिज्म को एक पॉजिटिव वर्ड्स के साथ डिफाइन करेगा, लेकिन जब कम्युनिस्ट को डिफाइन करेगा तो वो एक नेगेटिव जो है वो किसी किसी बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन और एक एंटायर रिलीजन है, तो जब वो रिलीजन को एक्सप्लेन करेगा तो वो अब यहाँ इमोशन उसने अपने अटैच कर दिए। तो ये जो पर्सुएसिव डेफिनेशन है, ये जो है इसमें इमोशनल कोलैबोरेशन आ जाती है, इमोशंस इंजेक्ट हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा, बहुत सिंपल से थे, हमने
फाइव काइंड देखिए, स्टिपुलेटिव, लेक्सिकल, थियोरेटिकल एंड पर्सुएसिव। ठीक है। और जो है वो हम, ठीक है, इसको हम एक तो और रिव्यू भी करते हैं। ठीक है। Okay, so what we talk about that we have five definitions in front of your screen. We have a quick revision. The first one is stipulation. The stipulation means a new symbol is introduced, which is not ever before, and one word referred to the another new word. For example, B and PM is called the zeta, and in quantum physics, the new word is called. And the second, the lexical. Lexical definition means to explain the use of function for it. You can define the things by its function, like a bird, like game, and precising. Precising means you eliminate the doubleness, vagueness, and ambiguity, like the liberalism and the freedom of speech. What does it mean? And fourth, theoretical, in which you will compress the summary of the theory given by the author, given by the any authority. You will be precisely define the theory. Finally, persuasive, where you define the things by the emotion and you give your own POV point of view, and your definition is highly affected and influenced by your inner emotion. You resolve dispute by influencing the emotion. For example, if you define capitalism, if you are negative about the capitalism, if you are Marxist, so you will define the capitalism in a very bitter way. But if you are a capitalist, you will define the capitalism with the sugar code and create that this one is very highly impactful and progressive. So persuasive when you define the things with your emotion. So here's all about the definition. Here's all about the types of